Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of microwave electronics, we will discuss about Hall cutoff voltage, Hall cutoff magnetic field and Hartree condition for cylindrical magnetron. We have already discussed about cylindrical magnetron or multi-cavity magnetron. So this is actually the cross-sectional view of multi-cavity magnetron. Here we have cathode. These are circular cavity and this is actually anode plate. This is the interaction chamber in which electron interact. So as we applied the magnetic field, electron starts to move from cathode to anode. In the absence of magnetic field, or when there is only electric field, then the electron which emit from cathode move in a straight line towards anode. For a specific applied voltage on anode, there is corresponding level of magnetic field B which is necessary for electron emitted from the cathode to just graze the anode and return towards the cathode. तो जैसे ही आप एक स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई करोगे एनोड पर तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जिससे इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इमिट होकर एनोड की तरफ जा रहे थे वो एनोड तक नहीं पहुंचेंगे, वो वापस कैथोड की तरफ आ जाएंगे. Therefore, the anode current in this case will be zero and this magnetic field is known as Hall cutoff magnetic field. तो इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंचता है, so the anode current will be zero and the magnetic field in this case is known as Hall cutoff magnetic field. In opposition of it, for a specific magnetic field, there is a corresponding anode voltage for which anode current will be zero. This voltage is known as Hall cutoff voltage. तो हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया है. इसके जस्ट अपोजिट हल कट ऑफ वोल्टेज होता है. एंड हल कट ऑफ वोल्टेज क्या है? एक ऐसा स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनोड वोल्टेज की वो वैल्यू जिस पर एनोड करंट हमारा जीरो होता है, उस एनोड वोल्टेज को हम हल कट ऑफ वोल्टेज बोल रहे हैं. सो द वोल्टेज अप्लाइड टू द एनोड for a specific magnetic field corresponding to which anode current will be zero is known as Hall cutoff voltage. Let B and A be the radii of curvature of anode and cathode respectively. तो अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, ये हमारा कैथोड, यहां पर एनोड प्लेट थी. इस कैथोड का रेडियस हम A एंड एनोड का रेडियस हम B कंसिडर करते हैं. लेट V नॉट बी द अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड. एंड एनोड एंड कैथोड के बीच में हमने वोल्टेज V नॉट अप्लाई किया है. एंड B is the applied magnetic field which is perpendicular to paper. That is, the applied magnetic field is in z direction and applied magnetic field हमारा B है. और ये जो magnetic field है, this is perpendicular to paper or it is in the direction of z axis. So z axis के डायरेक्शन में हमने magnetic field B अप्लाई किया है. Since the electron moves in curved path from cathode to anode, so this time three forces act on it. तो यहां पर हमारा कैथोड था, इधर एनोड था. So if there is no magnetic field, then the electron emitted from cathode move towards anode in a straight line path. And if we apply magnetic field, then the electron emitted from cathode move in curved path towards the anode.
And if we increase the value of magnetic field, then the curved path of electron is like this. It means as we increase the strength of magnetic field, the radius of curvature of curved path or circular path of electron is continuously decreasing, and at a particular magnetic field, no electron will reach to the anode and they bounce back or comes back to the cathode. So the electron moves in curved path from cathode to anode. So this time three forces acts on it. और ये forces कौन कौन से होंगे? Force due to electric field Fe is equal to minus E ER, and this E is actually the charge of electron. Since electron is negatively charged particle, so we place here negative sign. And ER is the applied electric field. Force due to magnetic field Fm equal to minus E V cross B. B is the applied magnetic field and V is the velocity of electron. Since the electron moves in curved path or circular path, so centripetal force also acts on it, and it is given by F C equal to mv square by r. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर तीन फोर्स लगेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा ये हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ये हो गया एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ये हो गया. इन इक्विलिब्रियम द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? Fc plus F equal to Fm. Fc is the magnitude of centripetal force, Fe is the magnitude of electric force, and Fm is the magnitude of force due to magnetic field, that is this one. So mv square upon r plus er equal to evb. Now ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, and here er is equal to v naught upon r log b by a. Cyclotron frequency. If er equal to 0, then the electron moves in a circular path and returns back to the cathode. So अगर ये er हमारा 0 है, इस केस में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और वो एनोड तक नहीं पहुंचेंगे, वो वापस कैथोड की तरफ आ जाएंगे. तो आप यहां पर er को 0 कर दो. सो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू evb. So mv square upon r equal to evb. Now v से v कैंसिल हो जाएगा, so mv upon r equal to eb और v by r equal to eb upon m, and v equal to r ओमेगा होता है और ओमेगा इक्वल टू v by r. So omega is equal to v by r equal to eb upon m, and this omega is cyclotron frequency. So यहां पर v से v कैंसिल हो गया, so v by r हो गया eb upon m and v equal to r omega. So v by r equal to omega, और यहां पर हमने इसको ओमेगा c लिखा है. ओमेगा c इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. So cyclotron frequency omega c equal to eb upon m, and e by m is actually eta. So omega c equal to eta b. So cyclotron frequency will be eta b or eb by m, and this is cyclotron angular frequency. The equation of motion of electron in crossed electromagnetic field is. अब अगर हम क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? F इक्वल टू माइनस ई आर प्लस वी क्रॉस बी, क्योंकि लॉरेंट फोर्स E इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम होता है, एंड F इक्वल टू माइनस ई आर एंड एफ एम इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी. सो force is equal to minus E
ER plus V cross B and F equal to MA. So MA equal to minus ER plus V cross B. And from here, acceleration A equal to minus E by M into ER plus V cross B. So this is the acceleration of electron. The equation of motion of electron in cylindrical coordinate are. अब अगर हम cylindrical coordinate में equation of motion लें इलेक्ट्रॉन की तो वो क्या होगी? A equal to minus E by M ER plus V cross B निकाला है and E by M ईटा होता है and acceleration A होता है d2r upon dt2 minus r d theta by dt whole square. और यहां पर हम वेक्टर नोटेशन हटा रहे हैं सो ये नेगेटिव हट जाएगा E by M हमारा ईटा सो ईटा ER सो ईटा ER एंड ईटा V क्रॉस B हो जाएगा ईटा V BZ with negative sign and V equal to r d theta by dt. So this will be minus eta r d theta by dt BZ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा z डायरेक्शन में था इसलिए d2r upon dt2 minus r d theta by dt होल स्क्वायर हमको ये मिल जाएगा and 1 upon r d by dt of r square d theta by dt is equal to eta bz dr by dt. So the equation of motion of electron in cylindrical coordinate are this one and this one. Now इस r को आप यहां पर ले जाओ so d by dt of r square d theta by dt is equal to eta bz r dr by dt और इसको हम क्या लिख सकते हैं d by dt of r square into 1 by 2 क्योंकि अगर इसको ओपन करोगे तो यह जाएगा 2r dr by dt और यहां पर r dr by dt है इसलिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वापस हमको r dr by dt मिलेगा इसका मतलब r dr by dt को हम 1/2 d by dt of r square लिख सकते हैं so d by dt of r square d theta by dt is equal to 1/2 eta bz d by dt of r square but eta bz equal to omega c तो आप इस eta bz को ओमेगा c लिख दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा c d by dt of r square. So d by dt of r square d theta by dt is equal to 1/2 omega c d by dt of r square. Now on integrating on either side तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो जैसे इंटीग्रेशन करोगे d by dt से d by dt कैंसिल हो जाएगा और साथ में हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k मिलेगा तो जैसे इंटीग्रेशन करोगे हमको क्या मिलेगा r square d theta by dt is equal to 1/2 omega c r square plus constant of integration k. So r square d theta by dt is equal to 1/2 omega c r square plus c and here c is constant of integration. Now ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है on applying boundary condition. अब boundary condition क्या है at r equal to a that is at the boundary of cathode d theta by dt is 0 तो आप यहां पर d theta by dt को 0 कर दो and r को हम a कर देते हैं so c equal to 1/2 omega c a square with negative sign क्योंकि जैसे आपने d theta by dt को 0 किया r को a किया ये r भी हमारा a हो गया so c plus half omega c a square equal to 0 और c equal to minus half omega c a square so c equal to minus half omega c a square. अब ये जो c आया है इस c की वैल्यू को आप यहां पर रखो so r square d theta by dt is equal to half omega c कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में बचेगा r square minus a square. So r square d theta by dt
इज इक्वल टू हाफ ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड यहां से अगर हम डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालें तो इस आर स्क्वायर को आप नीचे ट्रांसफर कर दो। तो जैसे आर स्क्वायर को नीचे ट्रांसफर करोगे ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू हाफ ओमेगा सी 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी E इंटू वी, क्योंकि एनर्जी होती है QV और यहां पर Q का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E इंटू वी एंड V इज पोटेंशियल। सो EV इक्वल टू हाफ m dr by dt होल स्क्वायर प्लस r d थीटा by dt होल स्क्वायर, क्योंकि E इंटू वी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर होगा एंड v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v स्क्वायर इक्वल टू dr by dt होल स्क्वायर plus r d theta by dt whole square, because this v contain radial velocity as well as tangential velocity. So v square हो जाएगा dr by dt whole square plus r d theta by dt whole square. For grazing the anode r equal to b. So anode की grazing के लिए r equal to b होना चाहिए and here b is the radius of anode. So r equal to b, v equal to v naught and dr by dt equal to 0. तो अब यहां पर v को v naught, r को b and dr by dt को 0 कर दो। So e v naught is equal to half m b square d theta by dt whole square. So E V naught equal to half m b d theta by dt whole square. तो हमने r की जगह b रखा है और इसको 0 कर दिया और साथ में v को v naught किया। तो E V naught की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ इस स्क्वायर को ओपन करो, सो b स्क्वायर d थीटा बाई dt होल स्क्वायर और यहां पर साथ में हाफ m है तो इसको यहां पर लेके जाओगे तो ये जाएगा ट्वाइस E V naught अपॉन m। सो b स्क्वायर d थीटा बाई dt होल स्क्वायर is equal to twice E V naught upon m and E by m equal to eta. So b square d theta by dt whole square equal to twice eta V naught. Now b square d theta by dt whole square equal to twice eta V naught अभी हमने निकाला था and also d theta by dt equal to half omega c 1 minus a square by r square. तो यहां पर आप d थीटा बाई dt की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो हमको क्या मिलेगा, b स्क्वायर इंटू हाफ ओमेगा सी 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ईटा वी नॉट, क्योंकि r इक्वल टू b था तो हमने r को b पुट किया है इसलिए इक्वेशन हमको ये मिल गई। एट ग्रेजिंग ओमेगा सी इक्वल टू ईटा bc and BC is the cutoff magnetic field. So grazing पर ओमेगा सी की वैल्यू ईटा BC होती है और BC मैंने कहा है cutoff magnetic field है, तो आप ओमेगा सी की जगह ईटा BC रख दो। So B square into half ईटा BC 1 minus a square by b square whole square equal to twice ईटा V naught. Now यहां से हम b से 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो क्या जाएगा b से 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होल स्क्वायर और साथ में यहां पर क्या बचा हुआ है b स्क्वायर ईटा स्क्वायर अपॉन 4 और राइट हैंड साइड में ट्वाइस ईटा वी नॉट है जिसको हम राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं। सो इनटू 4 अपॉन बी स्क्वायर ईटा स्क्वायर, इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एक ईटा से ईटा कैंसिल हो जाएगा। सो 8 वी नॉट डिवाइडेड बाय ईटा बी स्क्वायर। सो बी सी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 8 वी नॉट अपॉन ईटा बी स्क्वायर। नाउ यहां से हमको कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीसी की वैल्यू निकालनी है। सो बीसी निकालने के लिए आप पूरी इक्वेशन का रूट लोगे
तो जैसे रूट लोगे यहां पर रूट आ जाएगा, ये पावर कैंसिल हो जाएगी और BC निकाल रहे हो, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा। सो यहां पर रूट में बी स्क्वायर है, तो इस बी स्क्वायर को जैसे रूट से बाहर निकालोगे तो बी बन जाएगा। सो बी सी इक्वल टू रूट ऑफ 8 वी नॉट अपॉन ईटा होल डिवाइडेड बाय बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सो बी सी इक्वल टू रूट ऑफ 8 वी नॉट अपॉन ईटा divided by b into 1 minus a square by b square. So this is our cutoff magnetic field, and this cutoff magnetic field is known as Hull cutoff magnetic field. So Hull cutoff magnetic field की वैल्यू हमको ये मिल गई है। It means if Bz is greater than Bc, so applied magnetic field in z direction is greater than the Hull cutoff magnetic field for a given value of anode voltage, then the electron will not reach the anode. So अगर applied magnetic field जो हमने z डायरेक्शन में अप्लाई किया है उसकी वैल्यू हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BC से ज्यादा हो किसी पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज V0 के लिए, तो उस केस में कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो किसी भी कंडीशन में एनोड तक नहीं पहुंचेंगे। The Hull cutoff magnetic field is BC equal to 8 V naught upon eta whole raised to half divided by B into 1 minus A square by B square। ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। Now हमको हल कट ऑफ वोल्टेज निकालना है। Now the cut off voltage VC for a given BZ, so किसी पर्टिकुलर BZ के लिए अगर हम कट ऑफ वोल्टेज VC की वैल्यू निकालें तो आपको क्या करना है, BC की जगह BZ एंड V0 की जगह VC काम में लेना है। सो BZ इक्वल टू 8 VC अपॉन ईटा होल रेज़्ड टू हाफ डिवाइडेड बाय B इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। हमको हल कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, इसका मतलब VC की वैल्यू निकालनी है। तो VC निकालने के लिए हम पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं। सो BZ स्क्वायर इंटू 8 VC अपॉन ईटा डिवाइडेड बाय B स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, और यहां से अगर VC निकालोगे तो VC इज इक्वल टू BZ स्क्वायर B स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, और साथ में ये जो 8 अपॉन ईटा था ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, इसलिए ईटा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा एंड 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो VC इक्वल टू 1 अपॉन 8 BZ स्क्वायर ईटा B स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। सो VC की वैल्यू हमको ये मिलेगी। सो हमने पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया है। सो BZ स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आएगा, सो B स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 VC अपॉन ईटा। नाउ VC की वैल्यू निकालनी है, सो 8 बाई ईटा को इधर लेके जाओ तो ईटा बाई 8 हो जाएगा। इट मीन्स VC इक्वल टू 1 अपॉन 8 टाइम्स ईटा BZ स्क्वायर B स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर होल स्क्वायर। So VC equal to 1 upon 8 eta BZ square B square into 1 minus A square by B square whole square. So this is Hull cutoff voltage. This is Hull cutoff voltage. It means if the applied voltage is greater than the Hull cutoff voltage for a given magnetic field BZ, then the electron will not reach the anode. So अगर किसी पर्टिकुलर BZ के लिए अप्लाइड वोल्टेज V0 की वैल्यू हल कट ऑफ वोल्टेज से ज्यादा हो तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन हमारे कैथोड से इमिट होंगे वो किसी भी कंडीशन में एनोड तक नहीं पहुंचेंगे। नाउ हार्ट्री वोल्टेज एंड हार्ट्री कंडीशन, mv स्क्वायर बाई आर प्लस ई इंटू ई आर इक्वल टू ई वी बी था एंड ई आर इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर लॉग ऑफ बी बाई ए।
तो हम यहां पर ई आर की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस ई वी नॉट अपॉन आर log b by a is equal to e v b। नाउ ई वी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। सो ई वी नॉट डिवाइडेड बाय आर log of b by a equal to e v b minus m v square upon r। नाउ ई वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, सो इसको आप यहां पर ट्रांसफर कर दो। सो ई वी नॉट इक्वल टू ई वी बी माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर लॉग बी बाई ए। नाउ वी नॉट हमको निकालना है, तो पूरी इक्वेशन को हम ई से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे यहां पर ई से डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ई से डिवाइड होगा तो ई कैंसिल हो जाएगा। एंड हम क्या करते हैं, v कॉमन ले लेते हैं। तो e से डिवाइड भी कर रहे हैं और v कॉमन भी ले रहे हैं। तो जैसे e से डिवाइड करोगे, यहां पर e कैंसिल हो जाएगा और यहां पर e डिनोमिनेटर में आएगा और v आप कॉमन ले रहे हो। तो जैसे v कॉमन लोगे, ये v हट जाएगा और यहां पर एक v हट जाएगा। सो v नॉट इक्वल टू v इंटू बी माइनस एम अपॉन आर ई इंटू आर लॉग बी बाई ए। तो हमको क्या मिल गया, v नॉट इक्वल टू v इंटू b माइनस एम v अपॉन आर ई इंटू आर लॉग ऑफ b बाई ए। नाउ इस r को हम आगे ले लेते हैं। तो जैसे r आपका यहां पर आएगा, v नॉट इक्वल टू आर वी इंटू बी माइनस एम वी अपॉन आर ई लॉग ऑफ b बाई ए। तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। एंड ओमेगा e इक्वल टू v बाई आर। एंड ओमेगा e क्या है, omega e is the angular velocity of electron moving in a circular path of radius r। so r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारी ओमेगा ई है। अब हम क्या करते हैं, सो यहां पर आप इस v बाई आर की जगह ओमेगा ई रखो एंड इस v की जगह यहां से हमको क्या मिलेगा, r ओमेगा ई। इट मीन्स v नॉट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा ई इंटू बी माइनस एम ओमेगा ई अपॉन ई लॉग ऑफ बी बाई ए। एंड ई बाई एम हमारा ईटा होता है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ईटा। सो वी नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा ई इंटू बी माइनस ओमेगा ई अपॉन ईटा लॉग ऑफ b बाई ए। तो v नॉट की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। सो जैसे हमने v बाई आर की जगह ओमेगा ई एंड e बाई एम की जगह ईटा रखा और साथ में इस v की जगह r ओमेगा ई रखा, तो v नॉट की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, टेकिंग r इक्वल टू b प्लस a बाई 2 and log b by a equal to twice b minus a upon b plus a। so log b by a की जगह हम ये कम में लेते हैं एंड r equal to b plus a by 2 है। तो आप यहां पर ये वैल्यू रख दो एंड इस r की जगह ये वैल्यू रखो। तो v नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट इक्वल टू b प्लस a अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, b प्लस a होल स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा ई b माइनस ओमेगा ई अपॉन ईटा एंड लॉग b बाई ए हमारा ये हो गया। सो ट्वाइस b माइनस ए अपॉन b प्लस ए। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, ये b प्लस ए से एक b प्लस ए कैंसिल करो। सो v नॉट क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 b प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ओमेगा ई b माइनस ओमेगा ई अपॉन ईटा एज इट इज। So V naught equal to 1 upon 2 omega e b square minus a square b minus omega e upon eta, and this is Hartree condition। So Hartree condition हमारी ये है and V naught is Hartree voltage। This condition will be necessary
to synchronize the electron angular velocity to the velocity of traveling wave on the multi-cavity structure of magnetron. So, here we end our session. In today's session, we have discussed about Hall cutoff voltage, Hall cutoff magnetic field, Hartree condition and Hartree voltage for multi-cavity magnetron. So, goodbye.